بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال اول کے طلباء، آپ کا 25واں لیکچر خواجہ حیدر علی آتش کی پہلی غزل کی تشریح ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش اردو زبان کے نامور شاعر مانے جاتے ہیں۔ یہ دبستان لکھنؤ کے بھی نمائندہ شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں رجائیت پسندی کا عنصر جو ہے وہ غالب ہے۔ انبساط، خوشی، سرمستی ان کی شاعری کی دیگر نمایاں صفات ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے فقر، دنیا کی فنا پذیری، اخلاقی مضامین، حرکت و عمل، جد و جہد، اس کا بھی پیغام اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ وہ دبستان لکھنؤ، وہ شاہان اودھ کا دور جس میں عیش و عشرت ہے، اس سے بالکل الگ تھلگ ایک درویشانہ فقیرانہ زندگی، ایک کٹیا میں زندگی بسر کرنے والا یہ درویش منش شاعر اردو غزل کو نئے ذائقوں سے آشنا کر کے اپنی ایک الگ راہ نکال کے گیا۔ مصطفی کا شاگرد اور پنڈت دیا شنکر نسیم جیسے مثنوی شاعر کا استاد۔ اس کی شاعری میں دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی دونوں کی خصوصیات کی آمیزش ہے۔ خارجیت لکھنؤ سے ہے تو داخلیت دہلی سے ہے۔ سادگی، سلاست، صفائی، روانی، سوز و گداز، یہ دلی شاعری کی جو صفات ہیں وہ بھی اس کے ہاں موجود ہیں۔ اور پھر وہ سرمستی، کیف، انبساط، وصل کی نشاط انگیزی کے مضامین، وہ ان کو لکھنوی دبستان سے جوڑتے ہیں۔ تو غزل کے جو ان کا مطلع ہے، ہوائے دورے میں خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے۔ مفہوم اس کا خوشگوار شراب پینے کا دور شروع ہونے والا ہے۔ چمن سے خزاں رخصت ہو رہی ہے اور بہار کی آمد ہے۔ غزل کے مطلع سے ہی اندازہ لگا لیجیے کہ کتنی رجائیت پسندی ہے شاعر کہتا ہے کہ ایسی ہوا چل پڑی ہے کہ جو خوشگوار، مستی امیز شراب پینے کے دور کی آمد کی خبر دے رہی ہے۔ پھر خوشی کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، اچھے دنوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ چمن سے خزاں اپنا بوریا بستر لپیٹ رہی جا رہی ہے۔ برے دن ختم ہو رہے ہیں زندگی سے، پریشانی، مشکلات کے دن زندگی سے رخصت ہونے والے ہیں، اور بس بہار آیا ہی چاہتی ہے۔ ہمارا دامن پھر خوشیوں سے بھرنے والا ہے۔ مایوسی کے دن، پریشانی کے دن، مشکلات کے دن، مسائل کے دن وہ ختم ہو رہے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ خواجہ حیدر علی آتش یہ اس دور کا شاعر ہے کہ جس میں نواب سراج الدولہ کے قتل کے بعد، پھر ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریز دلی میں وارد ہو چکے ہیں، دہلی میں بھی انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور آہستہ آہستہ پورے برے صغیر پر اپنے جبر و استبداد کے پنجے وہ گاڑنے والے ہیں۔ لوگ مایوس ہو چکے ہیں، اسلامی سلطنت کی بساط لپیٹی جا رہی ہے، حالات ناگفتہ بے ہوتے جا رہے ہیں۔ اگرچہ لکھنؤ میں اس وقت شاہان اودھ میں
ऐशो इशरत के बाजार गर्म किए हुए थे, रखे हुए थे, लेकिन फिर भी एक नाउमीदी जो है वो बड़े सगीर पाको हिंद के लोगों में फैल चुकी थी। ऐसे में शायर उन्हें उम्मीद का पैगाम दे रहा है अच्छे दिनों को। जैसे मीर ने कहा था कि चलते हो तो चमन को चलिए, सुनते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं, फूल खिले हैं, फूल खिले हैं, पात हरे हैं, कम कम बादो बाद। और इसने भी एक जगह कहा है, बाग से बादे बहारी की है आमद आमद, बाग से बादे बहारी की है आमद आमद, ताकि मैखाना से है सागरे मीना उतरा। तो कहते हैं फसले गुल है, लूटिए कैफियत मैखाना आज, दौलते साकी से माला माल है पैमाना आज। नासिर काज़मी ने कहा था, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है। आतिश ने भी इसी किस्म का लोगों को पैगाम देने की हकीकी जुस्तजू की है कि घबराने की बात नहीं है। ठंडी हवाएं चलने शुरू हो गई, जिनमें शराब की बू रची बसी है। खुशी और इंबसात का जमाना शुरू होने वाला है। खजां जिसने, पतझड़ का मौसम जिसने हमें अपने हसार में ले लिया था, जिंदगी में दुख दार आए थे, परेशानियां आ गई थी, उनके खात्मे का वक्त करीब आ पहुंचा है और बहार जो है वो दबे पांव हमारी तरफ बढ़ी है। आमद बहार की है जो बुलबुल है नगमा संच, उड़ती सी खबर है जुबानी तयूर की। शेर गजल का मतला है, सनत मरातु नज़ीर का इस्तेमाल, दौर मैं खुशगवार, इससे अगर चमन की बात की जाए, बहार की बात, खजां बहार, ये सारे एक दूसरे से मिलते जुलते एक ही कैफियत थे। तो सनत मरातु नज़ीर, सनत तजाद का इस्तेमाल भी है, बहार और खजां। दूसरा शेर, अदम के कूच की लाजम है फिक्र हस्ती में, ना कोई शहर ना कोई दियार राह में। दियार कस्बे को कहते हैं, छोटा जैसे हमारा चौक आजम। अदम एक होता है वजूद होना और अदम ना होना, मौत के बाद। कूच सफर, हस्ती जिंदगी। शायर कहता है कि इंसान को अपनी जिंदगी में ही आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। इंसान को अपनी जिंदगी में सफर आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि रास्ते में कोई शहर या कस्बा नहीं आएगा। ख्वाजा हैदर अली आतिश जो दरवेश मंद शायर, वो देख रहे थे कि लखनऊ में लोग ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं, मौत को फरामोश कर बैठे हैं और जिंदगी की लज्जतों में इस तरह से खोए हुए हैं कि उन्हें आखिरत का याद ही नहीं कि मौत से भी हमकिनार होना है और फिर वहां आने वाले कल रोजे महशर में हिसाब भी देना है। तो ऐसे गाफिल लोगों को वो एक पैगाम दे रहे हैं कि अपनी जिंदगी में सफर आखिरत के बारे में सोचो। इस वजूद ने अदम भी होना है, अदम के रास्ते का मुसाफिर भी बनना है। जैसे किसी ने कहा कि अदम होने वालों तुम तो चलो, हम भी अब कोई दम में आते हैं। जाना तो सबने है, इसीलिए किसी शायर ने कहा कि जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है।
आतिश भी अपने शेर में गाफिल इंसानों को, जो मौत से गाफिल हो चुके हैं, जो जिंदगी को सब कुछ, जिसे कुरान ने खेल और तमाशा कहा, उसमें पड़े हुए हैं और अपनी आखिरत को फरामोश कर बैठे हैं। बतौर मुसलमान आखिरत पर ईमान तो हमारा बुनियादी की था, इसके बगैर तो ईमान ही मुकम्मल नहीं। इसलिए इसकी फिक्र भी लाजम है। और किस लिए कहा कि कोई ना कोई शहर ना कोई दियार राह में है? क्योंकि जब हम दुनियावी सफर पे जाते हैं तो हमें बहुत सारी सहूलियात मुयसर होती है। हमें पता होता है कि रास्ते में किसी शहर में, किसी कस्बे में पड़ाव डाल रहे थे। पुराने जमाने में काफिले चलते थे, लोग पैदल भी, घोड़ों पे, खच्चरों पे, ऊँटों पे सफर करते थे, गधों पे। तो वो रास्ते में पड़ाव कर लेते थे, ठहर जाते थे, किसी सराय में रुक जाते थे, किसी शहर में क़याम कर लेते थे, किसी कस्बे में क़याम कर लेते थे और फिर आगे चलते थे। ये दुनियावी सफर है जिसमें 100 तरह की सूरतें मुयस्सर हैं। इसके बावजूद हम उसकी तैयारी करते हैं, ज़ादे राह भी लेते हैं, सोचते भी हैं कि ये सफर किस तरह से करना है, कहां कहां रुकना है। लेकिन बदकिस्मती से हम इतनी गफलत का शिकार हैं कि वो सफर जो अनजान मंजिलों का है, तारीक रास्तों का है, उसके बारे में हम कोई तैयारी नहीं करते, उसको हम फरामोश किए बैठे हैं। और जब अजल आ जाती है, मौत हमें ढूंढती ढूंढती हमारी फसीले जिस्म को छू लेती है, तो फिर हमें एहसास होता है कि हमारी तो तैयारी नहीं। तो इससे पहले कि कौन जानता है कि तैयारी का वक्त मिलना भी है कि नहीं। तो शायद ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा है कि हमें फौरन इस सफर की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, अच्छे अमाल करने चाहिए, जिससे हमारा सफर आखिरत कामयाबी से कट सके। वैसे भी मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो कल हमारी बारी है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शायद मुझे मौत नहीं आएगी, लोग जा रहे हैं और मैंने आबे हयात किया हुआ है। किसी ने कहा ना कि वक्ते पीरी वो दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगंबरी, वक्ते पीरी गुर्गे जालिम मी शब्द परहेजगार। तो इंसान को आलम शुबाब में तोबा करके अपने अमाल की दुरुस्ती कर लेनी चाहिए, इस्लाह कर लेनी चाहिए। यही सफर आखिरत की तैयारी, कि जब ऐसे लोगों को जब मौत आती तो वो मौत उनके लिए कोई बोझ नहीं बनती, बल्कि वो उसका इस्तकबाल करते हैं। शेर गजल का हुस्न मतला है, सनत तजाद का इस्तेमाल है, अदम और हस्ती, फिक्री गहराई का हामिल है, फना पजीरी का मजमून है। तो आज ख्वाजा हैदर अली आतिश का थोड़ा सा मैंने तारफ करवाया। मैं ये बात बताता चलूं कि आपने सिर्फ एक दफा शायर का नाम लिखना है। शायर का नाम ख्वाजा हैदर अली आतिश। 3 शेर दिए होंगे मतवातर मुसलसल। एक शेर में ख्वाजा हैदर अली आतिश का थोड़ा सा तारफ, उसमें ये कि वो फैजाबाद में पैदा हुए, कब पैदा हुए, कब वफात पाई, उनके वालिद का नाम क्या था, उनके वालिदा का नाम क्या था, उनके मामू ने उन्हें कौन सा तोहफा दिया, उनके खालू ने क्या कहा। इस तरह की बातें लिखने की हरगिज़ जरूरत नहीं। कुलियात आतिश उनका पूरा है और गज़ल का ही वो अव्वल आखिर शायर है, ज़्यादा उन्होंने गज़ल की शायरी की है। चंद सतूर पहले शेर के आगाज में लिख देंगे, जिसमें ख्वाजा हैदर अली आतिश का उर्दू शायरी में मकाम व मर्तबा और उनके कलाम की खूसियत। उसके बाद जो बाकी 2 शेर आएंगे उसमें इस तरह की बातें लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मफहूम और तशरीह और फिर आखिर में फनी फिक्री जायजा। तो एक सफ़ा, एक शेर जवाबी काफ़ी, ये काफ़ी है। ज़्यादा जो जब लिखेंगे तो रिपीट होता जाएगा। तो आइंदा लेक्चर में इंशाल्लाह ये मुकम्मल होगी।